Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. 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 This class is TC2. Anybody foreign national student in this class? I mean to say, No, sir. everybody is comfortable with Hindi, or is there anybody who is Yes, not sir. comfortable with Hindi? कल पीपीटी मिल गई थी सभी को? Yes, sir. Fine. So what we have done till last class? Question. All questions are finished or something remaining? Last question was ends with AB. Ends with AB. Okay. Is this clear to everyone? Yes, sir. Fine. I have given this example also. So who has asked me this question for which I have explained like this? This train example I have given. Check my screen. Is it visible? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Onward. Everybody please check. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Cool. Fine. So what we have done till last class, this question. Ending with AB. Okay. Who has asked me the question for which I have explained this all stuff? Surat, Ahmedabad, Kota, Ratlam and all that. Who has asked me this question? Sagar. Sagar. Okay. Sagar, are you quite clear with this concept? Yes, sir. Okay. And what about others? Others are also pretty clear. Yes, sir. Yes, sir. Cool. So now we will have to start with next question. Ends with AB, starts with AB. Yes, fine. Do this one. Design a DFA which accepts all those strings which are having even length. And by length, what do we mean? Number of symbols. Over sigma is equal to A comma B. Did you get the question? Number of symbols should be even. That means double A, AB, BA, double B, or 4A, 4B, like that. Number of symbols should be even, right? So I'm try to attempt this question. One thing also which you have to make sure. What is that thing? If we will not do questions sincerely, if you will not attempt questions sincerely, what will be the problem? I told you that I will be dealing with huge set of questions, right? But that huge is also limited. Huge does mean I may get you to 20, 30 questions, 40 questions, not more than that, right? उससे ज़्यादा पैटर्न्स ही नहीं होते हैं क्वेश्चंस के. तो मैं आपको हर पैटर्न के एक दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करवा सकता हूँ. 40
क्वेश्चन से ऊपर 30-40 क्वेश्चन से ऊपर मैं क्लासेस के अंदर नहीं करवा सकता, बिकॉज वी हैव टू टेक केयर अबाउट द सिलेबस ऑल्सो. ठीक है. पॉइंट इज कि अगर आप अब क्वेश्चंस को सिंसियरली अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जितने पैटर्न्स है क्वेश्चंस के वो खत्म हो जाएंगे. और तब तक भी अगर आपने नहीं सीखा, अगर तब तक भी आप नहीं सीख पाए, तो फिर सीखने का चांस हमेशा के लिए चला जाएगा. सो मेक श्योर टू गिव योर फुल एनर्जी. मेहनत से, अच्छे से, पूरे मन से क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर खत्म होगा तो फिर ऑटोमेटिक नहीं सीख पाओगे. ठीक है. सो आई एम गिविंग 3 to 4 minutes फॉर दिस क्वेश्चन. एवरीबडी शुड ट्राई. राइट नाउ देयर इज 14:06, 2:06 है. मैं 2:10:30 पे वापस आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अगर लोगों को नहीं आएगा तो. ठीक है. टिल देन आई एम पुटिंग माई सेल्फ ऑन म्यूट, but during these 4 minutes you are allowed to ask me if you find any problem during these 4 minutes in doing this question. Is everybody clear for this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Do this one. I'm putting Yes, sir. myself on mute. Anybody have done with this? Yes, sir. Good. Who have done? So me. Harsh. Very good.
What about others? The people who have done, please type a message in the chat box, done sir, or done, something like that. Good, Harsh, very good. What about others? I'm expecting these answers from everyone. अरे बाकी लोग बोलते क्यों नहीं भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Response me fast. Doing. Doing, Okay. doing, sir. Fine, fine, fine. Acha, how many are such people who are saying, sir, if you give us 2 more minutes, we will be able to do this? ठीक है, fine. Take 2 or 3 more minutes. Try to do this if you are doing. Yes. What is your status now? भाई तुम लोग reply करो properly. This thing is very irritating. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, कर रहे हैं सर, समझने में टाइम लग रहा है। चलो, we cannot spend more than this time. Let me tell you how to do this. जिसका हो गया, जिसका नहीं हुआ, everybody stop working and please develop your cognitive thinking. थोड़ा सा इंटरेस्ट से काम करो और कॉग्निटिव थिंकिंग डेवलप करो. कॉग्निटिव का मतलब होता है कि आप नया क्या चीज अपने आप से कर सकते हो, राइट? सपोज मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया और उसके बाद मैंने आपको कुछ नया क्वेश्चन दिया है, तो यू शुड बी एबल टू डू दैट. मेक श्योर कि आप इतनी प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, और इस सब्जेक्ट के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये आपकी वो कॉग्निटिव थिंकिंग जो है उसको डेवलप कर सकता है, बशर्ते कि आप उस पर उतना इंटरेस्ट और टाइम डिवोट करें. ठीक है? दिस इन दिस सब्जेक्ट वी हैव फाइनाइट ऑटोमेटा, देन वी हैव पीडीए, देन वी हैव ट्यूरिंग मशीन, और सभी में आपको इसी तरह थॉट लाना पड़ता है. ये तो जो आप देख रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, ये सबसे बेसिक मशीन है. इसके बाद जब पीडीए होगा तो उसमें स्टैक आ जाएगा. उसके बाद जब आपका ट्यूरिंग मशीन आएगा तो यू विल गेट बोथ साइड मूवमेंट. इसमें तो क्या है, स्ट्रिंग को आप एक तरफ पढ़ते हो, केवल आगे बढ़ते जाते हो, बट व्हेन यू हैव टू गो बैक, स्ट्रिंग जहां पढ़ ली है उसके पीछे जाना पड़ता है. तब कैसे करना हुआ, तो दैट ऑल्सो यू हैव टू लर्न. तो इस सब्जेक्ट में उतनी कैपेसिटी है, ठीक है, बट टेक सम इंटरेस्ट. देखो मैं बता रहा हूं आपको एक क्वेश्चन, देखो ध्यान से. सबसे पहले विच शुड बी द मिनिमम स्ट्रिंग, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए इसके लिए? ए बी। AB.
What about others? Harsh, you tell me what should be the minimum string. आपने सॉल्व कर चुके हैं. Yes, sir. हाँ, either A or AB. Okay. Now everybody please try to understand this what I'm saying. ठीक है, अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हैं इंक्लूडिंग हर्ष ऑल्सो कि ए या ए बी होनी चाहिए, तो अभी किसी को भी ये क्वेश्चन नहीं आया. इवन का मतलब क्या होता है? डिविजिबल बाय 2. That means if there is a n which I am calling this n as even number, now n should be divisible by 2. That means what? N modulus 2 should result me 0. Yes or no? Yes, sir. यस सर. सभी लोग अपना अपना काम करना बंद कर दें. जस्ट फोकस ऑन बोर्ड. आपका ध्यान पूरा बोर्ड के ऊपर. ठीक है, और कान सारे मेरी आवाज पे. n modulus 2. Okay, now which is the smallest number which satisfy this? 2. 0. 0. 0 is the smallest number which satisfy this requirement. 0 modulus 2 is equal to 0. So basically, what is the smallest length of the string? Tell me. 0. 0. 0. Length of the string does mean 0. That means string कैसी है? इवन. M, अरे empty string है, even क्या? स्ट्रिंग कैसी हुई? एम्प्टी. एम्प्टी का मतलब उसमें कोई सिंबल ही नहीं है. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी आर ऑल्सो सपोज टू एक्सेप्ट दिस एम्प्टी स्ट्रिंग. ये भी एक्सेप्ट करना है हमको. एम्प्टी स्ट्रिंग को भी हमें एक्सेप्ट करना है. ये बात सभी को समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर वही Yes, तीन sir. आवाज है. Yes, sir. हाँ, गुड. So this is clear to everyone. अब how to accept the empty string? फाइनल. Tell me. फाइनल Sir, स्टेट. initial state is also final. सिंपल वे. इनिशियल स्टेट को ही क्या बना देंगे? फाइनल स्टेट बना देंगे. अगर आप इनिशियल को ही फाइनल बना देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग भी क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी. तो सबसे पहले मैंने बनाई मेरी इनिशियल स्टेट, और एरो बनाने के बाद उसको बना दिया मैंने फाइनल. ठीक है, दैट्स हाउ. अब ये हमारी मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग तो कवर हो गई. ठीक है, मिनिमम स्ट्रिंग जो होगी वो ये होगी. अब हम इसके आगे बढ़ेंगे. तो Q0 से वी आर सपोज टू गिव अ पाथ फॉर A एंड B. ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास जो पहला सिंबल आया, क्या ये जरूरी है कि वो A आए? No, sir. No, sir. इट्स नॉट कंपल्सरी. जरूरी नहीं कि वो A आए. वो A भी आ सकता है और क्या आ सकता है? बी. दोनों में B. से कोई भी एक सिंबल आ सकता है. A भी आ सकता है और B भी आ सकता है. तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक सिंबल आता है, सपोज एक सिंबल मेरे पास आया, तो मैं क्या करूंगा? उसे एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा? रिजेक्ट. Reject. Reject. रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू बी इवन. कैसे रिजेक्ट करेंगे? टेम्पररी या परमानेंट? टेम्पोररी. Temporary. 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 इसलिए मैंने टेम्पररी रिजेक्शन के लिए, सिंस दिस इज सपोज टू बी रिजेक्टेड टेम्पररीली, so that's why I have taken here a non-final state for the temporary rejection. Is that clear to everyone? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Now what we are supposed to do? एक और बात जो आपको समझनी है, अभी पाथ पे सिंबल नहीं लिखे हैं मैंने जानबूझकर. ठीक है, क्या समझना है आपको? अब मैं उस पाथ पर लिखने जा रहा हूं A कॉमा B, और जब भी मैं ये A कॉमा B लिखता हूं तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होकर क्वेश्चन पूछते हैं. दे आस्क कि सर आप A कॉमा B लिख रहे हैं, बट बिफोर दिस ओनली यू सेड कि एक पाथ पे सिर्फ एक ही सिंबल दे सकते हैं, ए बी तो दे ही नहीं सकते. ठीक, अब आप ए कॉमा बी लिख रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ए कॉमा बी और ए बी ये दोनों अलग अलग बातें हैं. दीज टू आर नॉट द सेम थिंग्स. क्या डिफरेंस है दोनों में? ए कॉमा बी कहता है फर्स्ट ए विल कम
then B will come. और ये दोनों बातें कंपलसरी हैं. तो A कॉमा B का मतलब क्या हो, ये A B का मतलब क्या हो गया? A एंड B मतलब दो सिंबल हैं यहां पर. These are two symbols. Okay, but what is being said by this A comma B? This says either A or B. Okay, that means it contains only one symbol. It can be anyone. A भी हो सकता है और B भी हो सकता है, लेकिन होगा सिर्फ एक ही symbol. So it contains only one symbol. Got the point? This is the difference in AB and A comma B. So when I'm writing here A comma B, it never means that I'm going to have A and B both. It means I'm going to have one symbol out of A or B. Have you got it? Yes, sir. Everybody is clear Yes, for sir. this? Okay, fine. Now check this out. If I have got this next symbol, क्योंकि आपने टेम्परेरी रिजेक्ट किया है ना, अब इसके बाद मेरे पास अभी अगर मान लो एक ए या एक बी और आता है तो मैं क्या करूंगा? एक्सेप्ट. टेम्परेरी और परमानेंट? permanent. Temporary. किसने बोला परमानेंट? Sir, me. मी मतलब हर्ष. बेटा अगर आप परमानेंट एक्सेप्ट करो, अच्छा फर्स्ट यू टेल मी व्हाई यू थिंक ये परमानेंट एक्सेप्ट होना चाहिए? सर एक ए आ चुका है अपने पास, एक ए या बी आ चुका है, हाँ और इवन के लिए अपन को एक और चाहिए. चाहिए. ओके, उसके आगे भी कुछ आ सकता है. सॉरी, आगे भी आ सकता है. दैट्स व्हाट द पॉइंट. सॉरी. जब भी हम टेम्परेरी या परमानेंट डिसाइड कर रहे हैं तो हमें देखना है कि अगर इसके आगे कुछ आएगा तो फिर मैं उस वक्त क्या करूंगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट. ठीक है? एनीबडी एल्स जिसको इसमें कोई कंफ्यूजन है? So this is also accepted, but again the acceptance is also temporary because we may have something further. Okay, और टेम्परेरी एक्सेप्टेंस मैं कहां से करता हूं? फाइनल स्टेट से. तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या मेरे पास ऑलरेडी कोई स्टेट है? Q0. Yes, sir. वापस कहां ले जाऊंगा? गॉट इट? Yes, sir. समझ में आ गया सभी को? दैट्स हाउ यू कैन डिजाइन इट फॉर इवन नंबर ऑफ सिंबल्स इन योर स्ट्रिंग. अब इसमें अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लो. Everybody is comfortable in doing this? Yes, sir. Yes, sir. Good. चलिए. Now let's design one more automata. Check this one. Now you have to do this same process, but for the odd number of symbols. Okay. So again, design a DFA where length of string is odd over sigma is equal to A comma B. Do this. Try to do this one. Again, I'm putting myself on mute just for 2 minutes. Meanwhile, if anybody wants to ask me any question, you can ask me. Okay, but you should attempt this one very, very sincerely. What is this here? What rubbish. You have to attempt this very, very sincerely. Okay, start doing this. Length is odd. If anybody want me to show the previous question, then I will not show. This you're supposed to remember. इतना तो याद रखो कम से कम. Start doing this.
हाँ जी, डन। अरे बोलो, हैव यू डन विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था उसमें। Done, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? अभी तक एक भी गर्ल स्टूडेंट की आवाज नहीं आई है मुझे। डन सर। क्या हो गया भाई लड़कियों को? आ नहीं रहा क्या क्वेश्चन? हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम में तो लड़कियां ज्यादा होशियार होती थी। आजकल पता नहीं क्या होने लगा है। व्हाट अबाउट द गर्ल्स? Fine. So just a simple change is required. What we have to do, सेम डायग्राम बनना है बस आपका, केवल जिसको आपने इनिशियल स्टेज, जिसको आपने नॉन फाइनल बनाया है उसको फाइनल बना दीजिए, और जिसको फाइनल बनाया है उसको नॉन फाइनल बना दीजिए। हो गया? ठीक है। दिस वन इज फॉर दी ऑड लेंथ, राइट? नाउ आई एम गिविंग अ न्यू क्वेश्चन टू एवरीवन। चेक दिस आउट। अभी तक जो हमने रेस्ट्रिक्शन लगाया था वो सभी सिंबल्स पर लगाया था, बट अब हम क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ ए इज इवन ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। नाउ डू दिस। स्ट्रिंग में और भी दोनों हो सकते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है केवल नंबर ऑफ ए पर। नंबर ऑफ ए हैज टू बी इवन। ठीक है। फिर से मैं आपको 2 मिनट देता हूं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस वन। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि सेट ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास लिमिटेड ही है। 30-40 तरह के ही क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें करीब 10-15 तरह के अलग अलग पैटर्न्स आ जाते हैं। उससे ज्यादा क्वेश्चंस, उससे ज्यादा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस ना तो आपके सिलेबस में और ना ही अभी आपसे करवाने का कोई मतलब है, एटलीस्ट एज इफ नाउ। ठीक है। तो इसलिए वो सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो खत्म होने वाले हैं। आज के लेक्चर, today's lecture is going to be last about the set of questions. So if you really want to learn it, then you have to put a hard effort on this. Okay, start doing this. I'm putting myself on mute for 2 minutes. Try to do this. मैंने खुद को म्यूट किया हुआ है, लेकिन if anybody wants to ask me any question, you can ask me during this time.
Those students who have done with this, type in the chat box, done, sir. Be quick. It should not take much time. अभी ऐसा ही क्वेश्चन किया है हमने, फटाफट करो. Janish, Sanskar, Anurag. What about others? Guys, I'm telling you, today it's going to be the last lecture where we are practicing questions. Next class we will be discussing new topics. So everybody, please make sure to do it with full of energy. Boost up yourself. कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आ रहा है ये? और तुम लोग अगर क्विक रिस्पांस नहीं करोगे तो फिर मैं सारे क्वेश्चन अपने आप ही करा दूंगा तुम लोगों को. यू विल नॉट गेट अ चांस टू अटेम्प्ट देम. फिर आप खुश तो बहुत हो जाओगे कि सिलेबस फटाफट खत्म हो गया, लेकिन अंदर की बात ये है कि आएगा कुछ नहीं. और ये मैं जानता हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा. रिप्लाई करो फास्ट, किस किस को नहीं आ रहा है? सबको आ गया? सर हो गया. नल एक्सेप्ट हो जाएगा वापस से. अगर ए आएगा तो रिजेक्ट करेंगे फर्स्ट ए पर, सेकंड ए पर एक्सेप्ट कर लेंगे. ठीक है. और बी जो है वो कितने भी आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. एक्सेप्टेड होगी पहले से स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट रखेंगे, और रिजेक्टेड होगी तो रिजेक्टेड रखेंगे. दैट्स द ओनली थिंग विच वी हैव टू डू. ठीक है, फाइन. सभी का यही बनाया, कुछ और बनाया किसी ने? अरे बोलो भाई. यही बनाया सभी का, कुछ और भी बना लिया इसके अलावा? कुछ और बना दिया. किसने किसने बनाया? मैंने. क्या गड़बड़ की है? सर Q0 को रिजेक्ट किया है, हाँ. फिर ए में Q1 लिया है, Q2 लिया है और Q0 Q3 लिया को है. जैसे ही तुम रिजेक्ट करोगे तो नल एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा? बोलो. नथिंग. एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो पाएगी अगर तुम Q0 को रिजेक्ट कर दोगे तो? एक Q0 इनिशियल स्टेट है, वो वन सर्कल बनाया है इसमें. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. अगर आपने Q0 को वन सर्कल बनाया है मतलब वो नॉन फाइनल स्टेट है ना. तो उस हाँ. केस में हाउ विल यू मैनेज विद रिस्पेक्ट टू एम्प्टी स्ट्रिंग? एम्प्टी स्ट्रिंग को कैसे एक्सेप्ट करोगे बताओ? लूप लगाना पड़ेगा Q0 में. अरे लूप, हद हो गई. मैं कह रहा हूं जब वो नॉन फाइनल स्टेट है, ठीक, यस. तो मैं उसमें लूप लगा लूं या कुछ भी कर लूं, एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? टेल मी दिस. यस सर. इफ इट इज अ नॉन फाइनल स्टेट, ठीक, अब मैं लूप लगाऊं या कुछ भी करूं, हाउ विल यू एक्सेप्ट इट? रिजेक्ट करना पड़ेगा. फिर वही बात, रिजेक्ट करना पड़ेगा. नल को रिजेक्ट करना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ. अरे नल को रिजेक्ट क्यों करोगे? नल तो एक्सेप्ट करना ही करना है. हाँ, नल एक्सेप्ट करना है. नल हमको डीएफए के हिसाब से स्ट्रिंग थोड़ी ना बनानी है, हमको स्ट्रिंग के हिसाब से डीएफए बनाना है. बात आ रही समझ में? सागर. थोड़ी 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 थोड़ी. अच्छा, क्या बात नहीं समझ में आ रही मुझे बताओ. सर नल इधर क्वेश्चन में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर में ऑफ ए. हमें क्वेश्चन में हमें स्ट्रिंग दी जाती है, उसके हिसाब से हम डीएफए बनाते हैं. बात समझ में आ रही है? यस सर. या हम अपना डीएफए बना लेंगे और स्ट्रिंग वाले से कहेंगे तू इसके हिसाब से स्ट्रिंग दे दे? ऐसा तो नहीं करना है ना. यस सर. ठीक है, अब बोलो, अब बोलो क्या कह रहे हो? सर इधर ये क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ ए इज इवन.
हाँ लिखा है। तो मतलब हमें दो तो ए चाहिए ही चाहिए इवन के लिए। नहीं, यहाँ ऊपर लिखा था स्ट्रिंग लेंथ इज इवन, तो कितनी लेंथ चाहिए थी इवन के लिए? एक के लिए इवन चाहिए ना। हाँ हाँ, तो नंबर ऑफ ए अगर जीरो होगा तो भी इवन माना जाएगा ना। सर नंबर ऑफ ए जीरो कैसे हो सकता है, ए जीरो हुआ तो ए ही नहीं होगा ना। हाँ तो ठीक है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे फिर। भी यहाँ पर हमारे सामने लिखा था लेंथ शुड बी इवन, हाँ या ना? यस। ठीक है, इवन का क्या मतलब था? कि जीरो लेंथ भी अलाउड है, हाँ या ना? यस। अब मैं ए गिनूं या बी गिनूं, गिनती बदल जाएगी क्या? मैं ए बी गिन लूं या डबल ए गिन लूं या बी ए गिन लूं, गिनती तो वही रहेगी ना। ओके। अब मैं अगर डबल ए गिनूंगा तब भी दो गिनूंगा, अब ए बी को क्या गिनूंगा, कुछ और गिन दूंगा दो के अलावा। अच्छा, एक के साथ कोई भी हो तब लेंथ दो होनी चाहिए ऐसा। हम्म। चलो ध्यान से सुनो, इसमें लिखा, चलो पहले तुम बताओ तुमने क्या सोचा। सर मेरे हिसाब से दो ए आने चाहिए। मेरे हिसाब से नंबर ऑफ ए इवन होने चाहिए। हाँ मतलब ये वही। बात सही है या गलत है? यस सर। अब सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? जीरो। जीरो। तो फिर ए दो क्यों होने चाहिए? रिप्लाई दिस क्वेश्चन। अगर सबसे छोटा इवन नंबर जीरो है तो ए दो मिनिमम क्यों होने चाहिए? तो सर हम्म, सर ए होगा ही नहीं तो कंडीशन ट्रू कैसे होगी? आप बताओ ट्रू है कि नहीं है? अगर ए जीरो है, अगर नंबर ऑफ ए जीरो है तो नंबर ऑफ ए इवन है या नहीं है? सर इवन तो है लेकिन ये नहीं है ना उधर, बात वही है। तो ठीक है, मतलब ए नहीं है, ठीक है। अब ए नहीं है तो कितने ए हैं? जीरो है, ए ही नहीं है तो ए जीरो। ही नहीं है। तो नल है। जीरो, तो जीरो ए है ना, मतलब ए है हाँ। ही नहीं, मतलब नंबर ऑफ ए कितने रह गए? जीरो। हाँ। अब जीरो इवन है या नहीं है? जीरो तो इवन है। इवन है, मतलब, और जीरो ही क्या है? नंबर ऑफ ए है, क्योंकि ए है ही नहीं तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया? जीरो हो गया। सर ऊपर से जा रहा है वही। अरे भाई, चलो। सर मैं बताता हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ, सुनो। तुम्हारा नाम क्या है? सागर। कोई भाई है तुम्हारा? हाँ सर। क्या नाम है उसका? राजेंद्र। राजेंद्र। कोई दूसरा भाई भी है? हाँ। कौन? चैनेस। जैनेश। अब सागर का भाई है राजेंद्र, ठीक है, और राजेंद्र का भाई है सागर। तो सागर और सॉरी, ये क्या नाम बताया? जैनेश। हाँ। ठीक है, मैं स्पेलिंग कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, माइंड मत करना। सागर का भाई है राजेंद्र और राजेंद्र का भाई है जैनेश। ठीक, तो सागर और जैनेश में क्या रिश्ता हुआ? भाई। दोनों भाई हो गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। ठीक है, अब इसमें भी डाउट है तो फिर तो अपने मम्मी पापा से शिकायत करियो। चलो अब ध्यान से सुनो, ठीक है। मैंने बोला नंबर ऑफ ए मुझे काउंट करने हैं, ठीक है। यस सर। अब मैंने नंबर ऑफ ए गिने, सपोज एन, ठीक है। ओके सर। अब मुझे पता करना है एन, मुझे देखना है ये इवन है या नहीं है। क्लियर? ओके। अब अगर एन इवन होगा तो नंबर ऑफ ए इवन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ। विद दिस सेम लॉजिक, नंबर ऑफ ए हाँ। एन है और एन इवन है, तो नंबर ऑफ ए इवन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? यस सर। ठीक है। अब हमारे लिए इस समय एन की वैल्यू जीरो है और मैं श्योर हूं कि जीरो इवन है, हाँ या ना? हाँ। अब जो जीरो है वो नंबर ऑफ ए बन गया या नहीं बन गया? हाँ।
तो 0 माने नंबर ऑफ ए जो है वो इवन हुए या नहीं हुए, हाँ बस इतनी सी बात है। अभी भी डाउट है तो फिर से पूछ लो। सर मैं प्रोग्रामेटिकली देख रहा हूँ ये चीजें। ठीक है, प्रोग्रामेटिकली देखो और मुझे बताओ दिमाग में क्या बात आ रही है। सर स्ट्रिंग कोई भी मैं स्ट्रिंग। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, तो इसका व्यू चेंज हो गया। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हेलो। अब आ रही है। हाँ अभी आ रही है, बोलो। सर मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, स्ट्रिंग एस। स्ट्रिंग एस, ठीक है। हाँ। ये मैंने स्ट्रिंग एस ले लिया। बोलो इसमें क्या है अंदर। इसमें कुछ नहीं है, मतलब जीरो है। ठीक है, नहीं नहीं जीरो है तो फिर नहीं बोलेंगे कुछ नहीं है, मतलब ये एप्सिलॉन हो गई, नल हो गई, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सिर्फ डबल कोट ही है, अंदर कुछ नहीं है। हाँ ठीक तो है। ये जीरो हो जाएगी ना हाँ काउंट हो में। जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब हमें ये कर रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ, अब मैं स्ट्रिंग। अब आप पूछ रहे हो मुझसे कि नंबर ऑफ ए कितने हैं इसमें। हाँ तो नंबर ऑफ तो ये कुछ है ही नहीं है, तो फिर तो ये ट्रू कैसे तो होगी? हाँ, तो नंबर ऑफ ए कुछ नहीं ना, तो नंबर कितना गिनोगे इसका। जीरो। अब जीरो इवन है कि नहीं है। जीरो तो इवन है। तो नंबर ऑफ ए भी तो जीरो ही है, आप ही ने तो कहा नंबर ऑफ ए जीरो है। भाई मैंने क्या पूछा, जब ए है ही नहीं तो नंबर ऑफ ए कितना गिनोगे। जीरो। जीरो, और जीरो तो इवन है। ओके सर। तो नंबर ऑफ ए कितने हुए, इवन हुए कि नहीं हुए। ओके सर। जीरो। क्लियर। यस सर। अभी अभी भी मैं फिर से बोलता हूं, अगर अभी भी कोई दिक्कत है समझने में तो फिर से पूछ सकते हो मुझसे। क्लियर सर। क्लियर है लेंथ बिल्कुल। जीरो। एक ही लेंथ जीरो है, वो इवन हाँ में। हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है, एक ही ओके लेंथ अच्छा। जीरो है और वो इवन में आता है, ठीक है। कोई और यस जिसको सर। किसी भी तरह का डाउट है, डोंट वरी एट ऑल। कोई किसी को कैसा भी डाउट हो तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इतना ट्रस्ट मुझ पे रख सकते हैं, जो मैंने आपको, मुझे नहीं पता आप लोगों को अपना प्रॉमिस याद है कि नहीं है। आई डोंट रिमेम्बर। क्लास के रिएक्शंस देख के तो ऐसा लगता है कि याद नहीं है। मैं आपको याद दिला देता हूँ एक बार। दिस वॉज द प्रॉमिस विच वी हैव डन टू ईच अदर। Students have did students have promised me this thing and I have promised you this thing, ठीक। जो जो आपने डिमांड किया था, मैं अपना प्रॉमिस अभी तक पूरा कर रहा हूं और करता रहूंगा। इसलिए nobody has to worry about the doubts। सागर को जितना छोटा डाउट था, अगर इससे भी छोटा डाउट किसी को है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, 10 बार पूछो, बट पूछो और सिंसियरली समझने की कोशिश करो। सो आई एम स्टिल स्टिक विद माई ऑल कमिटमेंट्स। आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि अगर हम इसमें से एक भी कमिटमेंट ऐसा है जो पूरा ना कर रहे हो। आर वी हैविंग गुड इंटरेक्शन, एटलीस्ट मेरी साइड से अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस Yes. सर। यस सर। आपने मुझे बोला था कि सर वो वन वे इंटरेक्शन चलता रहता है, वो उसमें मजा नहीं आता है। तो मैं पूरा जी जान लगा के कोशिश करता हूँ कि 2 वे इंटरेक्शन हो। जो कमी है आपकी तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है, ठीक। प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हम सारे क्वेश्चंस पर्सनली कर करके चेक कर रहे हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड अप्रोच मैंने आपको प्रॉमिस किया था। किसी ने मुझे बोला था कि सर वो बनी बनाई पीपीटी होती है और उस पे से बस हमको या तो रीड करके बता, मतलब मतलब इट्स जस्ट लाइक यू सेड मी कि या तो रीडिंग कर दी जाती है या हमें रीड करना पड़ता है। सर उसमें मजा नहीं आता है, किसी ने ऐसा बोला था मेरे को, ठीक। अभी हम व्हाइट बोर्ड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, मेरा तो 100% व्हाइट बोर्ड अप्रोच है। मैं कुछ पहले से लिख कर लाता ही नहीं हूँ। ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोलो। यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज बियॉन्ड द सब्जेक्ट अभी समय नहीं आया उस चीज का। समय तब आएगा जब आप सिंसियरली ये सब्जेक्ट खत्म कर लो। अभी तो मेरे को वापस लौट के जवाब भी नहीं मिलते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कहाँ से बताऊं, ठीक। क्लासेस रेगुलर हो रही हैं कि नहीं हो रही है फिक्स टाइम पर। यस सर। यस सर। Yes, sir.
मेरी साइड के सारे कमिटमेंट्स मैं पूरे कर रहा हूँ। अब आप देख लो आप अपनी साइड पे कितने कमिटमेंट पूरे कर रहे हो कितने नहीं कर रहे हो। मेरे हिसाब से इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। ऑल आर डिसिप्लिन्ड, सब अच्छे बच्चे हैं यहाँ पर। बदतमीजी तो मैंने अभी तक किसी को भी करते हुए नहीं देखा, और ना ही करें उसी में भलाई है, क्योंकि वो उस चीज के लिए आई एम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव। ठीक, क्यूरियस जितना मैंने सोचा था भी सब लोग नहीं रहते हैं। सम पीपल आर क्यूरियस, दे डू आस्क देयर डाउट्स, बट मुझे पता है कि अभी भी इसमें से 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डाउट रहता है, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस शर्म की वजह से, लेकिन पूछ नहीं पाते। दे आर नॉट एबल टू आस्क देयर डाउट्स। जबकि मैंने कई बार आपको बताया है, और अभी आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दिया है, कितना भी छोटा डाउट आपको होगा मैं क्लियर करूंगा, और आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जितनी क्षमता मेरे पास है। बट कीप आस्किंग, ठीक है। और एक चीज जिसके साथ मुझे कंप्लेंट्स हैं, दैट इज दिस रिस्पॉन्सिवनेस। मैं बार बार एक ही बात दोहराता रहता हूँ, कितने लोगों का आ गया, कितने लोगों का आ गया, एंड यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिव। आप लोग बहुत सारा समय ये बार बार पूछवाने में खराब करवा देते हो। खैर, मुझे उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएगा ये सब कुछ। एनीवेज, सो ये बात समझ में आ गई सभी को। नंबर ऑफ ए इवन है मतलब नल एक्सेप्टेबल होगा। ठीक, नल एक्सेप्टेबल होगा तो हम नल को एक्सेप्ट करेंगे। बाकी का कॉन्सेप्ट सब सेम ही है ऊपर जैसा, बस वो रेस्ट्रिक्शन आपको ए पर लगाना है बजाय बी पर लगाने के। और बी पे मैंने क्यों उसी स्टेट पर सेल्फ लूप लगा दिया, बिकॉज बी के आने या ना आने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात, कितने भी आ जाएं इससे भी मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, कितने भी आ सकते हैं। इसका मतलब बी के आने से पहले अगर मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड थी तो बी के आने के बाद भी एक्सेप्टेड रहेगी। मतलब बिफोर बी अगर ये स्ट्रिंग का स्टेटस था एक्सेप्टेड, तो ये बी के बाद भी एक्सेप्टेड ही रहेगा। सिमिलरली अगर बी के आने से पहले ये स्ट्रिंग रिजेक्टेड थी, तो बी के आने के बाद भी ये स्ट्रिंग रिजेक्टेड ही रहेगी। नथिंग इज गोइंग टू चेंज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। फाइन, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर। किसी को भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, है तो फिर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी चीज जो आपको इस क्वेश्चन में ना समझ में आ रही हो? हाँ सर। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। यस सर। गुड। कोशिश कीजिए एक और क्वेश्चन में बना के देता हूं आपको करने की। यू हैव टू गिव अ हार्ड एफर्ट, वरना फिर क्वेश्चन सेट खत्म होने वाला है। अब 3-4 क्वेश्चन ही और रह गए। नंबर ऑफ बी इज ऑड ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। बनाओ फटाफट अपनी अपनी कॉपी पे। नोटबुक लेके बैठे ना सब लोग? Yes, sir. दिमाग में तो नहीं बना रहे ऑटोमेटा, कहीं से लेना आ Yes, रहा sir. हो? नो सर। पेन ना यस चला रहे हो और सर। दिमाग दिमाग में सोच रहे हो कि ये गोल बने, ये डबल सर्कल बनेगा कि सिंगल सर्कल। ऐसा मत करना, ये तो मैं भी नहीं कर सकता अभी। आप तो कैसे कर पाओगे? मेक श्योर टू सिट विद अ नोटबुक एंड अ पेन एंड डू दीज डायग्राम्स ऑन पेपर। बनाइए, कोशिश करो इसके लिए फटाफट। और जिस जिसका होता जाएगा, दे आर सपोज टू टाइप डन सर इन द चैट बॉक्स। मेक इट फास्ट। Fine. So now I have got a decent response.
इतने आसान क्वेश्चन पे जितने अभी तक तो झड़ी लग जानी थी 63 स्टूडेंट्स हैं, डन 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 डन, इतने हो जाने चाहिए थे कि कम से कम मुझे 2 बार स्क्रॉल करना पड़े, बट फिर भी इस बार कम से कम 8-10 बच्चों ने तो लिखा है। कौन ऐसा है इसमें जिसको दिक्कत आ रही है अभी भी? Anybody in the class who is still facing problem in this? So if everybody is clear for this, you are supposed to say a yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी अभी समझाया था, आप लोग रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, फिर वही दो आवाजें, यस सर। क्या कर रहे हैं बाकी लोग? Done, अगेन आई sir. एम रिपीटिंग, से यस सर इफ यू आर क्लियर फॉर दिस क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So you can make it like this. Q1, this should become the final state, then again you will get back to this, and this will be the symbol. Fine. I was thinking इस क्लास में हम क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे, but I had really bad response. तुम लोग वापस लौट के जवाब नहीं देते हो, इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है. So still we are remaining with the questions, probably for one more class. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये सभी लोग अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे क्लास खत्म होने के बाद घर पे अपने, ठीक है? और अटेम्प्ट करने के बाद देन यू विल गेट बैक टू मी विद दीज क्वेश्चंस. मेक श्योर अटेम्प्ट करने के बाद, इस बार मैं उन्हीं को बताऊंगा जो अटेम्प्ट करके रखेंगे, ठीक है? टिल देन, until I'm writing the questions on this whiteboard, just put your enrollment numbers into the chat box, everyone.
ठीक है, these are the set of questions which you are supposed to finish before the next class which we are going to take. So everybody have written the enrollment numbers? Yes, sir. Fine. After this Yes, lecture, sir. I'll share this PPT so that you can get all these questions and you can get your updated notes as well. Okay? Chalo. See you in the next class. This class is TC2.